All the amazing learners, I wish you all a very pleasant morning and hope that you all are quite in good health. So, dear learners, as you can see, our this lecture is concentrated on the social science history part, and we are here covering our NCERT book, that is India and the Contemporary World part 2nd, which is the test book for your class 10th. So dear learners, as you all know, this is our online classes and initiative of Shri Ram Public School, so that you do not miss any of your crucial time in this lockdown period also, and you can continue your study without even coming to the school through the medium of this online classes. So dear learners, before starting our class, I would urge you all to please like, share and subscribe your own channel Study Journey, and also do comment below how much you like the video. And if you have any doubt, you are all most welcome to ask it to get it clear from me. I assure you that you will get the replies as soon as possible. So now let's come to our current topic, that is of chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. So up till now we have already covered much part of this lecture, starting from the painting of the Frederick Sorio. Then what was the main theme beside that painting of the Frederick Sorio, how the Europe was developed into nation state. Then the idea of French Revolution, how it affected the nation, and what was the main ideas put on by the different revolutionaries. Then we came to the Napoleon's era. We learned how the Civil Code of 1804 affected the France and the nearby kingdom, and then how the Napoleon was defeated by the combined armies of 4 nations that were, yes, you can recall it. Yes, that were Britain, Russia, Prussia and Austria in the year 1815. And again, the conservatives took control over the France and the nearby region, because of which the revolutionaries has again to rise from the ashes like phoenix, and how they tried to free their country again from the autocratic, despotic, monarchical rule. So our current topic that we will study in this lecture is the age of revolution from the year 1830 to 1848. Before starting our lecture, let's make the lecture more attractive, dear learners, and we will have a look at a glimpse of changes that the July Revolution brought. So here you can see the main theme of this lecture, that Greece also accompanied the main revolution as was continued in the France. ग्रीस ने भी फ्रांस की तरह ही रेवोल्यूशन को कैरी ऑन कर लिया, और इसका रिजल्ट जैसे कि फ्रांस फ्री हुआ था, वैसे ही ग्रीक भी फर्दर जाके फ्री हुआ. वहाँ पर रेवोल्यूशन जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा था, क्योंकि फ्रांस में हमने पढ़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी आ गई थी, और फिर से गिसुप्पी मजीनी के अंदर न्यू रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ. और इसी के तहत जो है बेल्जियम नाम का एक कंट्री जो है वो अलग हो गई यूनाइटेड Kingdom of Netherlands से. So this was a brief introduction of our topic. Now we will continue with the detailed NCERT lecture. So students, stay tuned to this channel. So here comes our today's topic, point number 3, that is the age of revolution. So when the conservative regime tried to consolidate their power, मतलब कि जो कंजर्वेटिव रेगीम थे, जो स्ट्रिक्टली चाहते थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जो राजा और उनके फैमिली वाले थे वो अपने पावर्स को हर तरीके से जोड़ रहे थे, जगह जगह पे अपने पावर्स को फिर से इंक्रीज़ करने की सोच रहे थे. पर लिबरलिज़म और नेशनलिज़म का जो थॉट था वो उनको ये करने से रोक रहा था. कैसे रोक रहा था? वो कंटिन्यूस रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा था. कैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का थॉट रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा? वो लोग जो रेवोल्यूशनरीज थे, जिनके माइंड में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का एटीट्यूड था, जिनको अपनी कंट्रीज़ को फ्री कराना था, उनके दिमाग में ये
बात थी कि हमें कुछ भी करके अपना फ्रीडम फिर से हासिल करना है। कंजर्वेटिव्स अगेन फिर से जो फ्रांस और नियर बाई रीजन्स को कैप्चर कर रहा है, हमें उसे फ्री करवाना है। तो इसमें बहुत सारे रीजन्स थे जो कि इसी कंटेस्ट के साथ चल रहे थे और जहाँ पे रेवोल्यूशन एक एक करके कॉमन हो रहा था। सबसे पहले तो वो इटालियन और जर्मन स्टेट्स थे, और उसके बाद रेवोल्यूशन यहाँ तक ही नहीं रुका, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड तक भी ये रेवोल्यूशन पहुँचा। ऑटोमन एम्पायर कौन सा रीजन था? ऑटोमन एम्पायर नेम वाज गिवन टू अ मुस्लिम डायनेस्टी। एक तरीके की मुस्लिम फैमिली थी जिसकी डायनेस्टी जो थी उनका रूल था ये ऑटोमन एम्पायर। और ये कहाँ स्प्रेड था? ये ग्रीक और नियर बाई रीजन जो थे ग्रीक के, वहाँ पे ये ऑटोमन एम्पायर स्प्रेड था। प्लस आयरलैंड और पोलैंड, हर जगह मतलब ये रेवोल्यूशन पहुँच रहा था। हर जगह के लोग जो है वो अपने कंजर्वेटिव पावर से फ्री होना चाहते थे। तो मेनली ये जो रेवोल्यूशनरीज होते थे वो कौन होते थे? ये लिबरल नेशनलिस्ट का एटीट्यूड रखते थे। लिबरलिटी मतलब भी फ्रीडम होता है, और नेशनलिटी मतलब कि लोगों के खुद का एक नेशन जहाँ पे सारे राइट्स जो है वो उनके हों, जहाँ पे उनका कोई एक हिस्ट्री कॉमन हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। सो दैट इज़ द नेशनलिस्ट। तो लिबरल नेशनलिस्ट वाले आइडिया रखते थे रेवोल्यूशनरी, और मेनली वो किस क्लास ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, मतलब मिडिल क्लास में भी जो रिचर सेक्शन होता है, मिडिल क्लास में भी जो अच्छा वेल डूइंग मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, जिनका लिविंग जो है वो अच्छे से बना होता है, फिक्स्ड रहता है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, एजुकेटेड होते हैं, जैसे कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। उस टाइम ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लोग माने जाते थे, एज वेल एज वो थोड़ा अपने पास उनके पास पैसा भी, मतलब इन्हें सैलरीड क्लास माना जाता था। तो वो ईज़िली माना जाता था कि वो ईज़िली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बोथ इन द टर्म ऑफ देयर मनी, मॉनेटरी टर्म से भी वो प्रोटेस्ट वगैरह में पैसे लगा सकते हैं ताकि उस प्रोटेस्ट को कैरी किया जा सके, प्लस वो अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। ये करते करते फाइनली एक दिन आ ही गया जब फ्रांस में फिर से रेवोल्यूशन हुआ। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ था, वैसे फिर से जब 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स रेगीम आ गए तो उनके अगेंस्ट फिर से रेवोल्यूशन राइज करने लगा। और फाइनली इसका जो रेवोल्यूशन राइज कर रहा था धीरे धीरे एक तरीके से पूरा सबके अंदर का जो वो गुस्सा था वो फूट गया और खुल के फ्रांस की सड़कों पे प्रोटेस्ट होने लगा। कब? इन द जुलाई 1830। और क्योंकि ये जुलाई 1830 में स्टार्ट हुआ था इसलिए इस रेवोल्यूशन को बोला जाता है जुलाई रेवोल्यूशन। Okay, the Bourbon dynasty, who were being restored to the power during the conservative regime reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries. Finally ये revolutionaries जो है वो बहुत ही ज़्यादा strong हो चुके थे। 1830 में जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ जुलाई में, तब इन्होंने जो फ्रांस में न्यू कंजर्वेटिव रेगीम आ गया था, न्यू बार्बन डायनेस्टी आ गया था, उसको इन लोगों ने ओवरथ्रू कर दिया। इन्होंने हटा दिया फिर से वहाँ फ्रांस से राजा को। और जो कंजर्वेटिव्स रेगीम का उस वक्त जो लीडर था लुइस फिलिप, वो फ्रांस का हेड बन गया अब, और उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इम्प्लीमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। तो इस तरीके से जो है जुलाई रेवोल्यूशन के बाद फिर से फ्रांस की सत्ता पलट गई और अब जो है लुइस फिलिप फ्रांस का हेड हो गया। So I think you have got this much. Now here comes again a statement. As I told you in last lectures that the statements are very important point, because directly in your exam the statement can be given and the question can be asked. Any type of question can be made, like the statement would be given, who said the statement, who was he, and what was the Treaty of Vienna, when it was signed. Any related part to this statement can be asked in your exam. So what was the statement? The Metternich, who was the host of the Treaty of Vienna at the Congress of Vienna,
जो मीटिंग को हेड किया था और जो ऑस्ट्रिया का हेड था, चांसलर था, उसने एक बात बोली थी। उसने बोला था जब फ्रांस स्नीज करता है, जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरा यूरोप जो है उसको जुकाम पकड़ लेता है। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा था कि फ्रांस इतना पावरफुल था उस टाइम पूरे यूरोप में कि फ्रांस में छोटी सी भी कोई घटना होती थी उसके बारे में उसकी खबर जो है पूरे यूरोप में फैल जाती थी और वही घटना लोग जो है उससे इंस्पायर होकर अपने अपने एरिया में क्रिएट करने लगते थे। इसलिए वो बहुत ही बुरी तरीके से सारे रेवोल्यूशन को क्रश करना चाहता नहीं था कि कंजर्वेटिव रेगीम जो उसने फिर से इस्टेब्लिश किया उसको हटा दिया जाए। गुस्सेपी मैज़ीनी को भी इसलिए उसने कई बार पकड़ा था और कई बार एक्साइल में भेजा था, मतलब कि देश निकाला भेजा था, जहाँ पे गुस्सेपी मैज़ीनी अंडरग्राउंड होके फिर से अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे थे। तो ड्यूक मेटरनिच जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कंजर्वेटिव रेगीम को फिर से हटाया जाए और इसलिए वो नहीं चाहता था कि फ्रांस में ऐसी कोई भी घटना हो और उसके बारे में पूरे यूरोप को पता चले, पर होने को कौन टाल सकता है। और फाइनली फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ जुलाई में और उसकी खबर बाकी देशों को पड़ी और हर जगह जो है ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा था कि ब्रुसेल नाम के प्लेस पे भी ये रेवोल्यूशन फ्रांस का देखा स्टार्ट हुआ। और फिर क्या हुआ, ब्रुसेल जो है वो कहाँ पे था, वो बेल्जियम के पास था। तो ब्रुसेल वॉज नियर बेल्जियम। तो ब्रुसेल में जब ये घटना स्टार्ट हुई, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उसका असर ऑब्वियस सी बात है बेल्जियम और नियर बाई सारे रीजन्स पर पड़ेगा। तो इसका असर क्या हुआ था, फाइनली जो है बेल्जियम इसमें स्टार्ट हुए प्रोटेस्ट के वजह से ब्रुसेल्स में स्टार्ट हुए प्रोटेस्ट की वजह से बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। पहले जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड एक राज्य था जिसमें बेल्जियम भी उसका एक पार्ट था और वहाँ पे किंग का रूल हुआ करता था। पर जब ब्रुसेल में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो बेल्जियम को अलग कर दिया। मीन्स ब्रुसेल वॉज अ प्लेस नियर बेल्जियम, तो उसने अलग कर दिया कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। सो दिस लेड टू द सीरीज ऑफ इवेंट। इसके साथ ही जो है बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज होने लगे जहाँ पे एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो अभी हमने देखा फ्रांस में थी, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास पूरे यूरोप में, मतलब कि पूरे यूरोप से एजुकेटेड एलाइट जो हैं लोग निकल के आने लगे। और सेम वे जो है ग्रीक में भी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ गया, एज वी हैव जस्ट सॉ इन द वीडियो विच वी डिस्कस as the introductory part of this lecture. सो ग्रीक जो है वो ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। जैसा कि हमने अभी देखा, ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, मुस्लिम राजा थे और उनके अंदर कई सारे राज्य हुआ करते थे। तो उसी में से उनका एक राज्य था ग्रीस। कब, इन द 15th सेंचुरी। पर जब ये नेशनलिज्म का फीलिंग जो है ग्रीक में पहुंचा तो ग्रीक वाले लोग वो जो है अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से अलग करना चाहते थे। वो अपने आप को एक क्रिश्चियन कंट्री मानते थे। ऑब्वियसली वो क्रिश्चियन वहाँ पे हुआ करते थे और वो नहीं चाहते थे कि उन पे कोई मुस्लिम रूलर रूल करे, उनके पूरे कल्चर को चेंज कर दे, पूरा हर तरीके से अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करे। इसलिए एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ गया जहाँ पे सारे रेवोल्यूशनरीज निकल के आए जिन्हें कि बैकअप भी प्रोवाइड हुआ। इन रेवोल्यूशनरीज अकेले नहीं थे, उनको आसपास के जो नेशन थे हर जगह से उन्हें सपोर्ट प्रोवाइडेड था वहाँ के रेवोल्यूशनरीज से। और फाइनली जो है इन्होंने एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छेड़ दिया अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर और इसी की वजह से फाइनली ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गया। कब, द ग्रीक में इंडिपेंडेंस वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1821 में। और इसकी एक लॉन्ग बैटल चली, ठीक है, लॉन्ग बैटल चली क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो इंडिपेंडेंस का वॉर ग्रीक में स्टार्ट हुआ था 1821 में, जिसमें नेशनलिस्ट जो है उनको कई बार जो है ऑटोमन एम्पायर पकड़ के जो है उन्हें एक्साइल में भेज देते थे, मतलब कि देश निकाला भी घोषित कर चुके थे। तब इन लोगों को सपोर्ट मिलता था बाकी के एरियाज से। फिर बहुत सारे पोएट और आर्टिशियंस होते थे जो कि
लॉडेड करते थे ग्रीस एज द कैटल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब कि जो पोएट और आर्टिस्ट होते थे वो अपने देश के लोगों को, जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनको एनकरेज करते थे कि हमारा जो ग्रीस है वो एक यूरोपियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, हमारा खुद का ओपिनियन है और हम बिल्कुल भी किसी मुस्लिम एम्पायर के रूल में नहीं रहेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट लॉर्ड बिरन एक बहुत ही बड़े पोएट हैं इंग्लिश के। इनके बहुत सारी नॉवेल्स होती हैं जो मेनली बच्चों की फेरी टेल टाइप की कहानी को से की लिखी हुई होती हैं। और आपको अगर आप ये पब्लिक लाइब्रेरी किसी भी जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ कंपोजिशन लॉर्ड बिरन की ज़रूर मिल जाएगी। ही वॉज अ वेरी पॉपुलर पोएट। सो लॉर्ड बिरन ने भी उस टाइम ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया आपने। वो एक ग्रीक थे, मतलब ग्रीस में रहते थे, तो उन्होंने भी इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया, पर वहाँ पे ही वो लेट हो गए, डाइड हो गए बिकॉज ऑफ फीवर इन द ईयर 1824। After the long struggle of Greek Revolution, finally the Greece got independent in the year 1832 and a Treaty of Constantinople was signed। मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है कई जगह पे उनके इंडिपेंडेंट होने पे, वैसे ग्रीस ने अपना एक ट्रीटी को इम्प्लीमेंट किया। ट्रीटी इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ रूल और सेट ऑफ एग्रीमेंट। कभी कभी वो सिचुएशन वाइज डिफ़र करता है। जब दो लोग के बीच में ट्रीटी होती है तो एक मतलब कि एग्रीमेंट होता है दो लोग के बीच में, और ट्रीटी जब एक नेशन की होती है तो मतलब कि वो उसका खुद का सेट ऑफ रूल्स होते हैं। So here with the Treaty of Constantinople in the year 1832, finally Greece became an independent nation. So this was all about the introductory topic of the age of revolution. Now our next topic is the romantic imagination and the national feeling. What does this romantic imagination means? No, don't go somewhere else. Be here only. Romantic imagination, when related to a country, a nation, it means that कि लोगों के अंदर फीलिंग आती है अपनी कंट्री के लिए। लोग पैट्रियट, हम उसे सिंपल वर्ड्स में पैट्रियटिज़म भी कह सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो है रोमांटिक इमेजिनेशन, बहुत सारे जो पोएट होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, वो अपने अपने वर्क को लिखते हैं और उनका मेन जो थीम होता है उनके वर्क का, अब कोई भी आर्टिस्ट हो गया, कोई पेंटर हो गया, कोई पोएट हो गया, कोई नोवेलिस्ट हो गया, बहुत सारे आर्टिस्ट पर अपना काम करते हैं, पर उनका जो मेन थीम होता है वो होता है अपनी कंट्री को डेडिकेटेड, अपने नेशनलिस्ट स्ट्रगल के बारे में वो लोग लिखते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जो रोमांटिक नेशनलिज्म होता है वो किसी भी कंट्री के कल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और वो किस में निखर के आता है, वो निखर के आता है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक एंड एसेट्रा। So let us look at some of the example how romanticism glorified द कंट्रीज स्ट्रगल। कैसे जो है ये नेशनलिस्ट की जो फीलिंग होती है, जैसे कि शब्दों में या पेंट के थ्रू पिरोया जाता है, वो कैसे जो है एक कंट्री के स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लें तो हमें कैसे पता है कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान दे दी, भगत सिंह एक छोटी सी उम्र में ही वो फांसी के फंदे पे झूल गए। किसी ने उन वर्ड्स को लिखा है, किसी ने पोएम के फॉर्म में लिखा है, किसी ने पेंट के फॉर्म में लिखा है, किसी ने हिस्ट्री के फॉर्म में लिखा है, तभी तो आज हमें हमारे कल्चर के बारे में पता है। ऐसे ही जहाँ भी स्ट्रगल्स होते थे तो वहाँ के जो पोएस्ट होते थे, आर्टिस्ट होते थे, वो अपने स्ट्रगल को ग्लोरीफाई तरीके से पेश करते थे। मतलब कि ग्लोरी मतलब कि जैसे कि अच्छा सा प्राउड फीलिंग करा के उस चीज़ को, उस घटना को, इंसिडेंट को शो करते थे। सो ये जो रोमांटिज्म का फीलिंग है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे एक पेंटिंग दे सकते हैं। इट इज़ अ वेरी अलाइव पेंटिंग। दिस इज अ पेंटिंग एंड यू कैन फील दैट इट इज़ सो मच अलाइव, एवरीथिंग इज डिपिक्टेड बाय द पेंटिंग ओनली। वी कैन सी सिचुएशन इज दैट all the peoples are very much in despair, they are means looking like injured after something,
So yes, this was the painting at Troyes, which was made by Eugen Delorix in the year 1824. So this was a painting जो कि दिखाता है कि ट्रोयस नाम के प्लेस में मैसेकेयर हुआ था. वहाँ पे जो है ग्रीक को मार दिया गया था. किसके द्वारा? टर्क्स पीपल जो थे उन्होंने अराउंड 20,000 ग्रीक को मार दिया था. तो इसमें लोगों का स्ट्रगल शो कर रहे हैं पोएट कि कैसे जो है वुमेन, मैन, बच्चे, हर कोई जो है वो इसका शिकार हो गए थे. सो दिस वॉज द वे थ्रू विच द feelings of the people, the struggle of the countrymen, the struggle of the revolutionaries was put up into the alive pictures. सो अदर रोमांटिक, जैसे कि हमने अभी इंडिया का एग्जांपल लिया, वैसे ही बहुत सारे जो यूरोप में जो पोएट्स वगैरह रोमांटिक्स हुआ करते थे. नॉट दैट रोमांटिक दैट यू माइट बी थिंकिंग इन योर माइंड. सो कम बैक टू द टॉपिक डियर लर्नर्स. द रोमांटिज्म हियर मीन्स, अगेन आई एम सेइंग, इट इज़ रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. सो जर्मन एक फिलोसफर थे जो एक रोमांटिस्ट कहे जाते थे, जिनका नाम था जोहान गोटफ्रीड फ्रीडहर्डर, who was born in the year 1744 and died in the year 1803. So in the clip, dear learners, you can see the romanticism was being engraved in books, in the pictures. The feeling came alive by the authors and philosophers like John Gutenberg, and also by the pictures made by Eugen Delorix. So John Gutenberg Herder, the German philosopher, proclaimed that he said that the German culture was also a very important part of the history. To its common people, it declared as Das Volk. He said that the common peoples are united and I am giving them a common identity. एक नाम मैं दे रहा हूँ उनका जो कि है Das Volk. और इसके सॉन्ग्स के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, डांसेस के थ्रू, फोक डांसेस, फोक पोइट्री एंड फोक सॉन्ग. फोक क्या मतलब होता है? फोक मतलब जो एक रीजनल से रिलेटेड होता है. मतलब कि जैसे कि वो लोक कथाएं हम लोग कहते हैं ना, लोक गीत कहते हैं, दैट इज़ ओनली द फोक सॉन्ग्स एंड फोक पोइट्री. सो ये जो फोक डांसेस होते थे किसी पर्टिकुलर रीजन को रिलेट करते थे. ये लोगों के अंदर उनकी पर्टिकुलर भाषा में होते थे, तो उनके लिए समझने में भी आसान होते थे. प्लस ये बहुत ही अच्छे मीडियम होते थे जो स्टोरीज़ को कैरी करते थे जगह से जगह तक. तो जो जॉन गुटेनफील्ड हर्डर थे वो इसका यूज़ करते थे ताकि वो ट्रू स्पिरिट लोगों के अंदर जगा सके, किसकी? नेशन की. और जिस स्पिरिट को, मतलब कि एक फीलिंग को उन्होंने नाम दिया था वॉल्गिस्ट. So this was the means how he popularized his own ideas, his own thinking among the minds of people. He used these kind of folk culture to record the old history. मतलब कि वो यूज़ करते थे ये फोक सॉन्ग का मीडियम, फोक पोएट्री, डांसेस का मीडियम, जिसमें वो बहुत सारी कहानियाँ जो उनके एरियाज़ में प्रचलित होती थी, जो साहस की कहानियाँ होती थी उनके एंसेस्टर्स की, उनकी हिस्ट्री की, उसको वो इन स्टोरीज़ में, फोक स्टोरीज़ में पिरो के वो लोगों को सुनाया करते थे और लोगों के अंदर ये फीलिंग को जागृत करते थे कि कैसे वो हिस्ट्री में जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन थे, एक कंट्री थे. और आज भी वो टाइम आ गया है कि जब उन्हें इन चीज़ों से इंस्पायर होके अपने वो खोए हुए करेज को वापस पाना है, रेवोल्यूशन छेड़ना है अपनी कंट्री में और विन करना है अगेंस्ट द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव सोसाइटी. इसी दौर में बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया किसको? वर्नाकुलर लैंग्वेज को. वर्नाकुलर लैंग्वेज भी उसी को कहते हैं जो किसी कॉमन एरिया की लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलरली वहाँ में प्रचलित होती है. तो इस टाइम भी वर्नाकुलर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिला. कैसे मिला? क्योंकि जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो राइटर्स हुआ करते थे, वो अपने एरिया के वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखते थे. इससे जो वहाँ के लोग होते थे उनको पढ़ने में भी आसानी होती थी और उनको अपनापन महसूस होता था. और इसी के थ्रू वो लोगों के माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग को
इंस्टिल करते थे। और जो लोग इलिटरेट होते थे, जो लोग नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए प्ले वगैरह डिज़ाइन किए जाते थे, जैसे कि उसमें कलाकार होते थे जो किसी प्ले को परफॉर्म करते, जैसे कि रामलीला होती है, वैसे ही जो लोग होते थे वो प्ले को परफॉर्म करते थे, और उस प्ले के थ्रू जो मीनिंग होता था, उनका थीम होता था प्ले का, वो इलिटरेट लोगों तक भी पहुंचा दिया करते थे। और इसी केस में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पोलैंड में होता था, जब ग्रेट पावर रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के वजह से पोलैंड भी जो है फिर से एक कंजर्वेटिव रेजिम के अंडर आ गया इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो वहाँ पे जो कल्चर चलता था वो पहले पोलैंड का चलता था, पर जब वो फिर से कंजर्वेटिव रेजिम के अंदर आ गया, ग्रेट पावर्स के अंदर, तो उसको किसने ऑक्युपाई किया था? उसे रशिया ने ऑक्युपाई किया था। तो रशिया ने जब पोलैंड को ऑक्युपाई किया तो वहाँ पे वो अपना कल्चर थोपने लगे। तो पॉलिश लैंग्वेज को वो फोर्सफुली स्कूलों से बंद कराना चाहते थे और रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। पर पॉलिश पीपल इससे बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी कंट्री में किसी दूसरे लैंग्वेज, दूसरे कल्चर को इम्प्लीमेंट करना वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसी के अगेंस्ट जो है पोलैंड में 1831 में एक रेबिलियन हुआ। एक जो वहाँ के बागी लोग थे, वहाँ उन लोगों ने एक रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट द रशियन रूल, कि रशियन रूल के अगेंस्ट, ताकि रशिया वाले वहाँ से चले जाए और उनको उनका पोलैंड, उनका कल्चर, सब कुछ वैसे का वैसा ही वापस मिल जाए। तो इस प्रोसेस में मतलब सबसे बड़ा रोल किसका था? इस पोलैंड में जो ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ था, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो नेशनलिस्ट रेसिस्टेंस का ही था। वहाँ के लोग जो है अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे कि वो किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ना चाहते थे। वो अपने रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए चर्च में गैदरिंग किया करते थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में गैदरिंग किया करते थे। और इसी वजह से रशियन को जब पता चला कि ऐसा उनके अगेंस्ट हो रहा है, तो उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट और बिशॉप, मतलब बिशॉप वो होते जो हेड होते हैं चर्च वगैरह का, उसको जेल में डाल दिया। और कई लोगों को तो साइबेरिया भेज दिया, जैसे कि काला पानी की सज़ा होती थी यहाँ इंडिया में, वैसे ही वहाँ पे उन्होंने साइबेरिया भेज दिया और उनको पनिशमेंट देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो मना करते थे रशियन को उनके कल्चर को प्रीच करने से। सो पॉलिश जो है एक तरीके से क्या बन के आया? एक सिंबल बन के आया नेशनलिस्ट स्ट्रगल का अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, अगेंस्ट द रशियन पावर। सो देयर इज वन मोर एग्जाम्पल डेट how a person named Karol Kupinski, for example, celebrated the nationalist struggle. Karol कुर्पस्की नाम का जो पर्सन था वो पोलैंड में वो सेलिब्रेट करता था नेशनल स्ट्रगल, मतलब बढ़ावा देता था। किसके थ्रू? ओपेराज, जो सॉन्ग वगैरह होते हैं, म्यूज़िक होती है, फोक डांसेस के थ्रू। और इनका जो फोक डांसेस जो थे उनका कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे पोलोनाइज एंड मजुका, इस तरीके के फोक डांस होते थे और उसको वो एक नेशनल सिंबल की तरह यूज़ करता था। Now the next sub point of this lecture 3.2, that is hunger, hardship and popular revolt, that we are keeping for our next session, and hope that this much is enough for today. Dear learners, please do listen the video very carefully. If you missed or skipped any point, please again rewind the lecture and go through the point. This is the very important portion for your examination, board examination. It will fetch you much marks. Small points are there which will help you in gaining 1 marks, 2 marks, short answers question, which will be fixed in your exam, so that nobody will able to take that marks from you. The examiner will not get a chance to cut those marks. So we are, as you know, we are having here a detailed explanation of NCERT, so that your any of the point is not being missed, and it will also help you during this time, lockdown time, when you don't have your books, so that you can feel that the book is in front of you, because we don't know that how much the time will be, time this lockdown will be continued.
So better to not to avoid your lectures, go through it, study it, keep your studying in progress so that your crucial time is not wasted anyhow. With this, dear learners, we are ending up our today's lecture from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Dear learners, if you like the video, then don't forget to subscribe, share the channel and like the video. And also, if you have any doubt, do comment in below in the comment box. I assure you that I would try to resolve your doubt as soon as possible. Till then, stay home, stay safe. Don't forget to practice the social distancing. Wash your hand at frequent interval. Stay protected. Take care of your younger one as well as elder. So have a good day. Thank you.